Hello and welcome back to our channel where we are continuing a series of NCERT Geography class 10th, and we are going to discuss the whole book. Till now we have discussed 3 chapters in a very elaborate manner, and I don't hope that there is anything missing, right? I hope that there is nothing missing there, and you also have got a proper clarity of each and every topics. And take this note that all these chapters are very important for you. Okay, there are so many statements coming in exam, so it may help you to get through it. Okay, so the fourth chapter which we are going to start is agriculture. Agriculture. So here it is. What is written? That two-thirds of the population, right? Two-thirds of the population is engaged in the agricultural activities. Okay, two-thirds of the population are okay. I will start marking whatever the important points are there. So two-thirds of the populations is in agricultural activity. Okay, is in agricultural activity. Then agriculture is the primary activity which produces most of the foods that we consume, right? Agriculture is the primary activity, which means whatever the food we are consuming, it is coming from agriculture only. And besides food grain, it also produces raw material for various industries, like for cotton industry, okay, for textile industry. From where the cotton is coming? It is coming from the plant of cotton. It means from agriculture only, from cotton crops, right? This is the way how you are going to get for your industries. There are various raw materials, right? Then can you name some industries based on agricultural raw material? Yes, there are so many, like tea, coffee, spices, and these agricultural products are also exported. Okay, these agricultural products are also exported. Now, types of farming. So you must be knowing that agriculture is a very age old economic activity in our country, and it is means the cultivation method, it has changed significantly. Okay, the method of cultivation has changed. Why? Because it is dependent on the characteristic of physical environment. Technological know-how, means what technology you are using, then your socio-cultural practices. Okay, now what do you mean by means in this you will get various practices. The number one, the first one is your primitive subsistence farming. And what I have told you, that the agriculture cultivation, okay, cultivation is dependent on some methods, like on some characteristics, like physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. Okay. And I hope that you have opened your NCERT book also with me, so that you can mark it properly, and you can go further with that. Okay. And then first comes your primitive subsistence farming. So primitive means what? इसमें जो प्रीमी जो लिखा हुआ है ना, that is indicating your primary. Okay, means the first stage. Okay, so primitive is your traditional. Okay, primitive means your traditional farming. Okay, so and what I have told you, primitive means your means it will be having the characteristics of early stage, right? At the early how people had started farming, it means a primitive stage. And if we are following those methods now also, then it is known as your primitive farming is practiced. Okay, so in few pockets of India, at certain places, this type of farming is practiced now also. Okay, in this practice, on a small patch of land, okay, on the small patch of land, with the help of primitive tools, okay, with the help of primary tools, early stage tools, like hoe, dhow, digging sticks, and family community labor, okay, they are practicing this agriculture. And in this type of farming, they depend upon monsoon. They depend upon monsoon, natural fertility of soil, and suitability of other environmental conditions, okay, to grow the crop. All right. Okay, then depends upon, okay, it is a slash and burn agriculture. It is a slash and burn agriculture. Slash means to cut, then burn. Then after, when the patch is cleared, then you can do their agriculture, right? Okay, so what does it helps in? It helps in
it helps in replenishing the fertility. How? Because when you have done agriculture, when you have slashed the forest, the trees of an area, then you have planted, and then you have done your agriculture, okay, cultivation, then in the next season you are going to leave it fallow. It means you will leave it fallow, okay, you are not going to do anything there. So it will help in replenishing the fertility of the soil when you are leaving it, okay, when you are leaving it. So it will help in replenishing the fertility of the soil, okay. And land productivity in this type of agriculture is low, okay, the land productivity is low in this type of agriculture because it does not use any fertilizer or any other modern inputs, and it is known by different names in different parts, okay, known by different names in different parts. How? Let us see. It is झूमिंग in the northeastern states, it is known as झूमिंग, ठीक है. And it is known as your Pamlau, you translate it, you pronounce it how it is being pronounced, पर ऐसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. चलिए, पमलो इन मणिपुर एंड दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड्स, इसको दीपा बोला जाता है, ठीक है. देखिए आपको यहाँ पे 3 अलग अलग नाम मिल गए, एक हो गया झूमिंग, एक हो गया आपका पमलाऊ, देन इज योर दीपा. तो ये झूमिंग जो है, झूमिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, ठीक है. एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज योर मिल्पा इन मेक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका, देन कोनुको इन वेनेजुएला, ओके, in Venezuela it is known as your conuco, then roca in Brazil, then masol in Central Africa, then ladang in Indonesia and ray in Vietnam. आप देखना ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, वो बहुत ही इजीली वो बोल देता है कि आप इसको मैच करिए, कि या फिर बोल देगा कि इनमें से कौन से फॉलोइंग में से कौन से करेक्टली मैच्ड हैं, ठीक है. मैंने तो रिसेंटली मैंने देखा था जब मतलब एक टेस्ट सीरीज़ में कोचिंग का prelims test series when I was giving, at that time also I had seen that the same question has come, okay, so you should be very aware of all these things. और देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं तो और इससे ईजी वो क्या पूछ सकता है, ठीक है. बट व्हेन वी आर नॉट प्रिपेयर्ड विथ ऑल दिस बुक्स तो हमको लगता है कि कितना हार्ड हो गया है ना, ओके. इन इंडिया दिस प्राइमेटिव फॉर्म ऑफ कल्टिवेशन इज कॉल्ड व्हाट? देवार और दहिया इन मध्य प्रदेश, पोडू और पेंडा इन आंध्र प्रदेश, पंबा दाबी और कोमान और ब्रिंगा इन उड़ीसा, कुमारी इन वेस्टर्न घाट्स, वलरे और वॉल्टर इन साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल इन हिमालयन बेल्ट्स, कुरुआ इन झारखंड एंड झूमिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये एक झूमिंग इसके ऊपर ही एक ट्रिक वाला एक वीडियो ला देता हूँ, ठीक है. अगर आप लोग बोलोगे तो ला दूँगा बिल्कुल, ठीक है. तो ये अच्छा रहेगा, थोड़ा सा अलग अलग सा नाम है. विल प्रिपेयर अ गुड ट्रिक फॉर इट, ओके, वे आउट, सो दैट वी कैन रिमेंबर इट ईजिली, ठीक है. अच्छा, फिर आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ठीक है. सेकेंड फॉर्म आ गया आपका क्या? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इंटेंसिव का मतलब ये भी होता है कि सीरियस इंटेंसिव, या फिर आप इसको फुल फ्लेज्ड भी बोल सकते हो, ठीक है. फुल फ्लेज्ड मतलब अपना पूरा 100% है तो इंटेंसिव प्रिपरेशन हो रहा है उसका, ठीक है, इंटेंस प्रिपरेशन ऐसा. So he is doing his preparation full fledgedly, it means intensely, right? Okay, so I think आप लोग सब क्लियर हो कि इंटेंसिव होता क्या है, ठीक है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. तो ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस जो फार्मिंग है, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे ऐसा होता है, जो फार्मिंग ये जो प्रैक्टिस हो रही है ना, ये उन एरियाज़ में होती है जहाँ पे पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है. और ये लेबर इंटेंसिव होती है, लेबर बहुत सारे चाहिए होते हैं इसमें. और यहाँ पे जो बायोकेमिकल जो इनपुट्स हैं और इरिगेशन जो यूज़ होती है बहुत ही हाई लेवल पर होती है, ठीक है. इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा होती है और बायोकेमिकल इनपुट्स भी ज़्यादा होते हैं, तभी तो प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा. क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर अगर ज़्यादा है तो प्रोडक्शन भी तो हमको ज़्यादा चाहिए होगा, इसीलिए वो बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है. अब बोल रहा है कि आप कुछ स्टेट्स के बारे में बता सकते हो जो कि ऐसा फार्मिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है. तो आप देख लीजिए कि जितना भी हमारा एलुवियल प्लेन वाला जो स्टेट्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे फार्मिंग होती है. इंडिया में तो बहुत सारे जगहों पे ऐसे ही फार्मिंग होती है, बस पानी की होनी चाहिए सुविधा, ठीक है. और अगर पानी की कमी भी है तो वो पंजाब और हरियाणा के जैसे इरिगेशन फैसिलिटी से वो इरिगेट कर लेते हैं, है ना. तो जैसे हमने डिस्कस किया था शायद 9th क्लास के लास्ट चैप्टर में कि जो यूपी है, हाँ, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया में क्या था कि पॉपुलेशन जो है वो क्या है 751 से ज़्यादा पर्सन्स है पर स्क्वायर किलोमीटर इन यूपी.
और वही अगर आप जाके देखते हो बिहार और वेस्ट बंगाल और दिल्ली में, तो जो पॉपुलेशन है वो कितना है, वो है 1001 पर्सन्स से ज़्यादा है पर स्क्वायर किलोमीटर, है ना। तो आप उस हिसाब से बिहार और वेस्ट बंगाल में तो इंटेंसिव भी होता होगा, है ना। तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं, आपका जो आंसर है वो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं टिकडम से। जब कब कैसे निकालोगे, जब आपको पता होगा उसका आगे का पीछे का कुछ इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं बताते चलता हूँ कभी कभी इन्फॉर्मेशन भी। अच्छा, तो क्या बोल रहा है, दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस, जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड। अब देखिए, पिता से उनके बेटे को मिलेगा लैंड, उनके बेटों से उनको बेटों को मिलेगा, तो इससे क्या होता है, इनहेरिट होते जाता है लैंड। तो ये जो मिलते जा रहा है जो लैंड, ठीक है, इससे क्या होता है, डिवाइड होता है लैंड। एक पिताजी थे, पिताजी के 2 बेटे थे, ठीक है, और उनके पास में 2 एकड़ लैंड था, तो वो 2 एकड़ को वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1-1 एकड़ दोनों को मिला। उनके बेटे के पास में और 2-2 बेटे हैं, तो उनको और आधा एकड़ मिलेगा, उनके पास और 2-2 बेटे हैं तो और 0.25 हो जाएगा, है कि नहीं। तो वो ऐसा बोल रहा है। तो लैंड होल्डिंग साइज जो है वो छोटा होते जा रहा है, तो इससे वो अनइकोनॉमिकल हो गया है। फार्मर्स जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो उतने छोटे से लैंड के टुकड़े से। और क्योंकि उनके पास में कोई अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड है नहीं ना, कि अगर वो फार्मिंग नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे। तो इसीलिए बहुत सारा प्रेशर बनते जा रहा है एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर, ठीक है। क्लियर आ रही है आपके ऊपर, हाँ ठीक है। तो इसी की वजह से क्या हो रहा है, ये बहुत सारा एनॉर्मस प्रेशर बनते जा रहा है। अच्छा, तो इसमें आपने क्या देखा कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस जो है इसकी वजह से क्या हो जा रहा है, अनइकोनॉमिकल हो जा रहा है, ठीक है। मैक्सिमम आउटपुट निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स, है ना। अच्छा, नाउ कमर्शियल फार्मिंग के बारे में देखते हैं। कमर्शियल फार्मिंग क्या है, कमर्शियल मतलब क्या होता है, बिजनेस रिलेटेड, है ना, बिजनेस करने के लिए। तो कमर्शियल फार्मिंग में क्या होता है, देखिए कि इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे फार्मिंग का, वो ये है कि यूज़ ऑफ हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स। हायर डोज होना है मॉडर्न इनपुट्स का, जैसे हाई यील्डिंग वेराइटी जो है, हाई यील्डिंग वेराइटी जो सीड्स हैं, HYV सीड्स जो हैं, ठीक है, ये वो यूज़ करते हैं, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइजर्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर इंसेक्टिसाइड्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर पेस्टिसाइड्स भी, ताकि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। अच्छा, और ये रीजन वेरी करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप राइस देखो तो ये कमर्शियल क्रॉप है हरियाणा और पंजाब में, पर उड़ीसा में ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप है। सब्सिस्टेंस मतलब आपने क्या देखा कि जितना वो उगाते हैं उतना वो खाते हैं, जीने के लिए, अपने खाने के लिए वो उगाते हैं। पर यहाँ पे क्या है, कमर्शियल है। शायद उसमें से लेकर वो खाएँ भी, मना नहीं है। कमर्शियल इसका मतलब ये नहीं कि वो खाना छोड़ देंगे राइस उसमें से, नहीं, वो खाते भी हैं, पर साथ में उसको वो बेचने के लिए ज़्यादा वो उगाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि हायर डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट्स, HYV सीड्स, केमिकल, पेस्टिसाइड्स, ये सब होता है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी आ सके, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए नेक्स्ट पेज साइड में क्या लिखा हुआ है कि प्लांटेशन, ठीक है। अब हम प्लांटेशन देखिए, प्लांटेशन जो है वो भी एक टाइप का कमर्शियल फार्मिंग है। अच्छा, ऐसे फार्मिंग में सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है लार्ज एरिया के ऊपर में, सिंगल क्रॉप को, ठीक है, लार्ज एरिया पर ग्रो किया जाता है सिंगल क्रॉप। तो ऑप्शन में आ जाएगा आपके कि एक से ज़्यादा क्रॉप होते हैं, तो नहीं, सिंगल क्रॉप होते हैं। प्लांटेशन जो होता है ये, इसका एक इंटरफेस होता है ऑफ एग्रीकल्चर। प्लांटेशन हैज़ एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, ठीक है। इट हैज़ एन इंटरफेस, मतलब दोनों का उसके पास में फेस है, एग्रीकल्चर का भी और इंडस्ट्री का भी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, प्लांटेशंस कवर लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड। प्लांटेशन कवर्स व्हाट, लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ लैंड, ऑल राइट। देन दैट टू इट इज़ कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स, मीन्स इट यूजेस व्हाट, कैपिटल इंटेंसिव, मतलब जो भी आप उसमें जो भी मशीन्स आप यूज़ कर रहे हो वो कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा पैसा लगते हैं उसमें यूज़ करने के लिए इनपुट्स। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स, आप माइग्रेंट लेबरर्स को आप यूज़ करते हो उसमें, ठीक है। अच्छा, ऑल द प्रोड्यूस इज़ यूज एज रॉ मटेरियल इन रेस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। इसमें जो भी प्रोड्यूस होता है वो रॉ मटेरियल्स की तरह से यूज़ होता है। जैसे इंडिया में टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर कैन, बनाना, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। टी जो है वो आसाम में और नॉर्थ बंगाल में, ठीक है। कॉफ़ी जो है वो कहाँ पे हो जाएगा, आपको कर्नाटका में। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स हैं। अच्छा, तो ये जो प्रोडक्शन जो होता है ये मेनली फॉर मार्केट होता है, और एक अच्छा खासा नेटवर्क होता है ट्रांसपोर्ट का, कम्युनिकेशन का, ठीक है, जो कनेक्ट करता है प्लांटेशन एरियाज़ को, फिर प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ का और मार्केट्स का। ये सब अच्छा खासा जो कनेक्शन जो होता है प्लांटेशन एरिया, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और मार्केट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डेवलपमेंट ऑफ प्लांटेशंस, ठीक है नहीं। अच्छा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। आई होप इतना आपको बहुत ही क्लियर है, और मैं ऐसा कोई पॉइंट छोड़ नहीं रहा हूँ जो कि आपको फिर आगे चल के दिक्कत दे आप जब पढ़ें, है ना। आपको बिल्कुल ही क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए आप जो भी पढ़ रहे हैं। ओके, आगे देखिए, आगे बता रहा है क्रॉपिंग पैटर्न। क्रॉपिंग पैटर्न क्या होता है, ठीक है।
आपने अभी पढ़ा, मतलब आप पढ़ रखे हैं कि फिजिकल डाइवर्सिटी जो है एंड प्लूरलिटी जो है ऑफ कल्चर्स इन इंडिया, ठीक है, फिजिकल डाइवर्सिटी कितना है, प्लूरलिटी कितना है, ठीक है, कल्चर्स में हमारे इंडिया के। लेकिन साथ ही में ये एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में भी दिखती है कि कितने फिजिकल डाइवर्सिटी है, कितनी प्लूरलिटी है, ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न्स में, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में, ठीक है, जो आप टाइप ऑफ फूड, फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, स्पाइसेस और ये सब जो आप जो यूज़ कर रहे हो, ये ही तो बताती है कुछ इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, ये जो है ये ही तो कॉन्स्टिट्यूट करती है कि कंट्री में अब कौन क्या यूज़ कर रहा है ना, क्या कहाँ से किस चीज़ के लिए ज़्यादा फोर्स है, किसकी तरफ ज़्यादा फोकस है। तो उस हिसाब से इंडिया में 3 क्रॉपिंग सीजन्स उन्होंने डिवाइड किया है, ठीक है, 3 क्रॉपिंग सीजन्स, एक है राबी, एक है खरीफ और एक है जैद, ठीक है, राबी, खरीफ एंड योर जैद। तो फिर देखिए जी, अब हम देख रहे हैं क्या आपका क्रॉपिंग पैटर्न है ना। तो क्रॉपिंग पैटर्न में क्या हो सकता है आपका, देख लीजिए कि अभी जैसे मैंने आपको बोला कि 3 पार्ट्स में उसने डिवाइड कर रखा है कि नहीं, बिल्कुल क्लियर है, इतना तो कोई डाउट नहीं है कि राबी, खरीफ और जैद। अब ये है क्या, राबी क्रॉप्स क्या हैं? राबी क्रॉप्स वो हैं जो कि लगाए जाते हैं विंटर मंथ्स में, दैट इज़ फ्रॉम योर अक्टूबर टू दिसंबर, और इसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है समर में। ये तो सभी को आइडिया है कि विंटर कब से शुरू होता है, समर कब से, तो वो सब मंथ्स इतना याद मत रखिए तो ही सही है। आप बस अक्टूबर याद रख लीजिए इधर, और उधर अप्रैल याद रख लीजिए, इससे बहुत आपको डिफरेंस आएगा आगे चल के, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए वैसे तो, क्योंकि अभी तो यूपीएससी भी मतलब 2020 में इतने सारे क्वेश्चन पूछ रही थी, बहुत लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया था क्लियर करना प्रीलिम्स, और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे उसने क्वेश्चन पूछ रखे थे, ठीक है। और अभी इस बार 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं एग्रीकल्चर से, बस 1 या 2 मैक्सिमम 2 क्वेश्चन। तो देखिए कैसा, मतलब उसका ट्रेंड कोई पता ही नहीं चलता है। तो फिर भी आप अगर वर्स्ट के लिए प्रिपेयर हो तो इट इज़ वेरी गुड, सो ऑलवेज बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट वन, ओके, डोंट बी प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट वन। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स, कुछ इंपॉर्टेंट रबी क्रॉप्स हैं जैसे वीट, बार्ली, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड। आप एक बार जाके अपने एटलस को भी देखिएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है वो। अच्छा, दीज क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स हैं ये ग्रो होते हैं इन द लार्ज पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन जो स्टेट्स हैं जो कि नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स के जो स्टेट्स हैं, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, देन योर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ये सब इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंड होती है ना, यहाँ पे ठंड होती है, राबी ठंड, हाँ। और साउथ में कैसे कर लूँगा, साउथ में तो इतना है ही नहीं, वहाँ तो मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस है आपके ओशियन का, वहाँ पे तो इतनी गर्मी होती नहीं है, इतना डायरनल डिफरेंस है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे करते हैं क्योंकि वहाँ पे ठंड है, ठंड में ही राबी हो सकती है। देन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, जो प्रेसिपिटेशन जो हमको मिल जाता है, क्यों? क्योंकि वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन, ठीक है, जब हम क्लाइमेट का करेंगे 9th क्लास का, हाँ हमने 9th क्लास में किया हुआ है क्लाइमेट में, तो वहाँ पर वो पता चलेगा कि वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस आता है एक, ठीक है, मेडिटेरियन सी से होते हुए, तो उसके वजह से भी थोड़ा सा पानी मिल जाता है इनको, रेन मिल जाती है। हाउएवर द सक्सेस ऑफ, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक मार्क कर देते हैं, प्रेसिपिटेशन थ्रू द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स, है ना। देन इसको वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे बोला था। हाउएवर द सक्सेस, ये जो सक्सेस है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी 1960-70s में, उस समय इसको सक्सेस मिला था, और ज़्यादा सक्सेस मिला था इसको पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, और कुछ पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी इसको मिला था सक्सेस, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया ग्रोथ का रबी क्रॉप्स का, क्यों? क्या ग्रीन रिवॉल्यूशन से। देन खरीफ क्रॉप्स क्या हैं? खरीफ क्रॉप्स जो हैं ये ग्रो होते हैं जब मानसून का ऑनसेट होता है तब, मानसून ऑनसेट जून फर्स्ट वीक, हाँ, क्लाइमेट में देखा है हमने, फिर से उसके ऊपर जाके अच्छे से देखिएगा। अच्छा, तो मानसून का जब स्टार्ट होता है तब, और हार्वेस्ट कब किया जाता है इसको किया जाता है सितंबर अक्टूबर में। देखिए इसको हार्वेस्ट किए फिर उसको लगाएंगे, इसलिए तो पंजाब में टाइम मिलता नहीं है, तो वो फटाफट क्रॉप को जलाने लगते हैं, तो बहुत सारा पॉल्यूशन होने लगता है वहाँ पे, ठीक है। ये बात गवर्नमेंट भी समझती है, पर वो क्या करे, कुछ ना कुछ कर रही है, वो भी अपने हिसाब से बेस्ट करने के लिए ही कोशिश कर रही है, राइट। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स जो हैं यहाँ पे जो ग्रो होते हैं आपके खरीफ में, वो क्या क्या हो सकते हैं? पैडी, मेज़, जौवर, बाजरा, तूर, ठीक है, अरहर, मूंग, उड़द, योर कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड योर सोयाबीन, राइट। अच्छा, सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हैं वो क्या हो सकते हैं? राइस ग्रोइंग रीजन्स हैं, कहाँ पे? आसाम में है, वेस्ट बंगाल में है, कोस्टल रीजन्स ऑफ उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, वो भी पार्टिकुलरली कहाँ पे? महाराष्ट्र में, कोंकण कोस्ट में, फिर अलॉन्ग विथ उत्तर प्रदेश एंड बिहार, है ना। अच्छा, रिसेंटली पैडी जो है हैज़ ऑल्सो बिकम एन इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, और जो स्टेट्स हैं जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, यहाँ पे 3 क्रॉप्स होते हैं पैडी के एक साल में,
ठीक है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और ये कौन कौन से क्रॉप्स हैं, ये हैं ओस, अमान एंड बोरो। ये ऐसे सीधा स्टेटमेंट में आ जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ओस, अमान एंड बोरो। तो आपको पता रहना चाहिए कि ये चावल के नाम है, पैडी के नाम है, ठीक है, राइस से रिलेटेड है। ओके, अच्छा, फिर क्या बोल रहा है, इन बिटवीन द राबी एंड द खरीफ सीज़न, राबी और खरीफ सीज़न के बीच में क्या होता है, एक शॉर्ट सीज़न होती है, ठीक है, शॉर्ट सीज़न होती है, वो भी ड्यूरिंग द समर मंथ्स। राबी और खरीफ मतलब क्या है, बीच में थोड़ा सा 1-2 महीने का ही चांस मिलेगा आपको, ठीक है, उसमें ही होता है जैद, इसको जैद सीज़न बोलते हैं। और यहाँ पे जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं हम, जैद क्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि वाटरमेलन, मस्क मिलन, कुकुम्बर, ठीक है, फिर योर वेजिटेबल्स एंड योर फॉडर क्रॉप्स, ठीक है। फिर शुगर कैन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। देखिए शुगर कैन का ऐसा कुछ नहीं है कि इसी सीज़न में होगा, खरीफ सीज़न या राबी सीज़न, ऐसा नहीं है। शुगर कैन का तो भैया पूरा 1 साल लग जाता है शुगर होने में, है ना। अच्छा, शुगर कैन के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो शायद दिया भी हो इस बुक में, तो हम देख लेंगे उसको। पर जैसे अभी राइस का देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राइस मेजर कर, ऐसे शुगर कैन का भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, 2020 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ रखा है शुगर कैन से रिलेटेड। और अगर आप बहुत डीप में नॉलेज रखते हैं शुगर कैन का तो वो सॉल्व हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास में कॉमन सेंस है तो भी सॉल्व हो जाएगा वो, ठीक है। तो इसलिए उसको अलग से पढ़ना पड़ता है, ठीक है। चलिए, शुगर कैन हो गया, कॉटन हो गया, कॉफ़ी, टी, ये सब, हाँ। अच्छा, तो मेजर क्रॉप्स में आप देखते हैं, मेजर क्रॉप्स कौन से हैं। तो वैरायटी ऑफ फूड्स हैं, नॉन फूड क्रॉप्स हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग पार्ट्स में कंट्री के ग्रो होते हैं, ठीक है। और वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, सॉइल के ऊपर, क्लाइमेट के ऊपर, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो मेजर क्रॉप्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, राइस, वीट, मिलेट्स, पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट, ठीक है। तो अब राइस, ठीक है। चलिए, मैं इससे पहले आपको, ठीक है, मैं ना आपको लिए एक काम करूँगा ऐसा, मैं ना MSP के लिए एक छोटा सा वीडियो बना दूँगा, मैं सोच रहा हूँ, ठीक है, एक छोटा सा लेक्चर बना। MSP में बहुत लोगों का डाउट रहता है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है वो, तो मैं आपको उसके लिए एक छोटा सा वीडियो, आप उसको देख लेना। अभी इसमें अगर मैं इंक्लूड करूँगा तो ऐसे ही लेक्चर बहुत बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो फिर समझ रहे हैं ना, फिर लोग बोर हो जाते हैं देखने में, कोई ज़्यादा बड़ा लेक्चर थोड़ी चाहता है, हाँ? अच्छा, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि राइस जो है ये एक स्टेपल क्रॉप है, राइस है स्टेपल क्रॉप, राइट। अच्छा, और मेजॉरिटी ऑफ पीपल इसको मतलब स्टेपल क्रॉप के लोगों के लिए खाते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमारा कंट्री है ये सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। देख लीजिए, प्रोड्यूसर में सेकंड लार्जेस्ट है, पर एक्सपोर्टर में हम नंबर 1 हैं। लास्ट 5-6 सालों से इकोनॉमिक सर्वे में दे रखी है। अब आप बोलेंगे सर प्रोड्यूस जब कम हो रही है तो फिर ये कैसे होगा, शायद चाइना में और भी ज़्यादा खाते हैं वो हमसे चावल, वो ठीक है, चावल ज़्यादा प्रेफर करते हो तो वहाँ पे, इसलिए वो इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा, ये खरीफ क्रॉप है जिसके लिए टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए, अच्छी खासी ह्यूमिडिटी चाहिए, ठीक है, रेनफॉल भी चाहिए अबव 100 डिग्री, सॉरी 100 cm। अच्छा, इन एरियाज़ ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोस विद द हेल्प ऑफ इरीगेशन। वही मैंने आपको बोला था पंजाब और हरियाणा का केस, ठीक है। तो वहाँ पे इरीगेशन से हो जाता है, रेनफॉल अगर कम है तो। अब देखिए यहाँ पे बता रहा है मेजर एरिया, माइनर एरिया, ठीक है, मेजर एरिया एंड योर माइनर एरिया राइस के लिए, ठीक है। मैप दिख रहा है आपको, माइनर एरिया कौन सा है, ये पंजाब, हरियाणा, ठीक है, राजस्थान का नदर्न पार्ट जो है, ठीक है, फिर उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट एंड अब देखिए उत्तर प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट हो गया पूरा का पूरा, बिहार, वेस्ट बंगाल पूरा का पूरा, ठीक है, आसाम का भी है, मिडिल वाला पूरा ही, आसाम तो पूरा ही है मान लीजिए, ठीक है। देन देखिए नीचे भी उड़ीसा का भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स हैं, आंध्र प्रदेश का भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स हैं, तमिलनाडु का भी मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट्स हैं, ठीक है। फिर कुछ तेलंगाना का है, कुछ छत्तीसगढ़ है, ठीक है। देन योर मध्य प्रदेश का भी ईस्टर्न वाला पार्ट है, फिर छत्तीसगढ़ भी हो गया, ओके, ठीक है। झारखंड का भी नॉर्थ और साउथ दोनों पार्ट है, ठीक है। अच्छा, देखिए अगर राइस के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है और आपने ऐसा अगर कुछ मैप अगर आपने बनाया तो मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ आपका मार्क्स कुछ ना कुछ तो पक्का बढ़ ही जाएगा, क्योंकि आपके जो कॉम्पिटिटर है ना वो बनाने वाले हैं, तो आपको भी बनाना होगा, ठीक है। अच्छा, ओके, तो आप देख लीजिएगा उस मैप को, एक अच्छे से एक लुक आप दे दीजिएगा उसको। अच्छा, फिर हम आगे बढ़ते हैं कि राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ। राइस कहाँ पे ग्रो होता है, इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, ठीक है, राइस इज़ ग्रोन इन द प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, और साथ में इन द नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, ठीक है। अभी हमने जो देखा वही बता रहा है, एंड कोस्टल एरियाज एंड द डेल्टाइक रीजन्स, क्योंकि वहाँ पे एलुवियल ट्रैक्ट है ना। अच्छा, फिर बोल रहा है डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरीगेशन, अच्छा खासा कैनाल इरीगेशन हो, ट्यूबवेल्स हों,
इन्होंने पॉसिबल बनाया है कि राइस को हम ग्रो कर सकें जहाँ पे कि लेस रेनफॉल वाले एरिया में भी, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वाले एरिया में, पार्ट्स ऑफ राजस्थान में भी हम कर सकें। अगर रेनफॉल कम है तो भी इरीगेशन के हेल्प से, कैनाल के हेल्प से। देन वीट इज़ द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। वीट जो है सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है। फर्स्ट कौन सा था? राइस था। और ये भी मेन फूड क्रॉप है। कहाँ पे? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में। रबी क्रॉप है ये। इसको कूल ग्रोइंग सीज़न चाहिए, ठीक है, ठंडा सीज़न चाहिए, इसको हमने देखा ही था, ठीक है। इसलिए तो नॉर्थ के साइड में ज़्यादा मतलब ये उग पाता है। और ब्राइट सनसाइन भी चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। जब ये पक रहा हो उस समय सनसाइन भी अच्छा खासा होना चाहिए। इसको 50 से 75 cm का एनुअल रेनफॉल चाहिए, ठीक है। वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए रेनफॉल ग्रोइंग सीजन में। अच्छा, देयर आर 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स। दो इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन्स हैं इन द कंट्री। कौन से हैं वो? एक है गंगा सतलज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द ब्लैक सोइल रीजन इन द डेक्कन। तो मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। आप लोग बताइए कि राइस ग्रोइंग स्टेट सबसे मेजर, सबसे ज़्यादा हाई प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है? वेस्ट बंगाल, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब आते हैं मिलेट्स पे। मिलेट्स में क्या है कि जोवर, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। जोवर, बाजरा एंड रागी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। दो फिर भी देखिए क्या बोल रहा है कि इनको हम मानते हैं कोर्स ग्रेन के हिसाब से, पर इनका जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है ये बहुत हाई है। इनको तो माना जाता है नोन एज कोर्स ग्रेन, लेकिन इनका न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। फॉर एग्जांपल, रागी इज़ वेरी रिच इन आयरन, ठीक है, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज, ठीक है। और जोवर जो है, जोवर इज़ द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। देख लीजिए क्या बोल रहा है कि इन लोग बहुत रिच हैं कि इसमें आयरन में, कैल्शियम में और दूसरे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में और रफेज में भी। और ज्वार जो है ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप है, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन। अच्छा, ये सब रेन फेड क्रॉप्स होते हैं, मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज विच हार्डली नीड्स इरीगेशन, ठीक है। मेजर जो ज्वार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? आपका महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड योर मध्य प्रदेश, राइट। ओके, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है। फिर हम देखते हैं बाजरा। बाजरा जो है ये बहुत अच्छे से ग्रो होती है सैंडी सॉइल पे, ठीक है। तो बाजरा कहाँ पे ग्रो होती है? सैंडी सॉइल पे ग्रो होती है या फिर सैलो ब्लैक सॉइल पे ग्रो होती है। मेजर जो बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो यही हैं, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। ये भी एक रबी क्रॉप है, ठीक है। और ये ड्राई रीजन्स में होती है और अच्छे खासे जो रेड, ब्लैक और सैंडी, लोमी और जो सैलो ब्लैक सॉइल्स है उस पर भी होती है। जो मेजर जो रागी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं, ठीक है, वो कौन कौन से हैं? आपका कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, राइट। मेज़ का देख लेते हैं एक बार। मेज़ क्या है? मेज़ जो क्रॉप है ये दोनों के लिए यूज़ होती है, फूड और फॉडर दोनों। अच्छा, फॉडर मतलब क्या? चारा, ठीक है, चारा। कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे आपको। फॉडर मतलब क्या है? चारा है। ये भी एक खारिफ क्रॉप है जिसको टेम्परेचर चाहिए होती है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच में, और ये ग्रो होती है वेल इन योर ओल्ड एलुवियल सॉइल्स। ओल्ड, राइट, याद रखिए, ओल्ड न्यू। ओल्ड मतलब क्या हो जाएगा आपका? भंगार, है ना। अच्छा, इन सम स्टेट्स लाइक बिहार, मेज़ इज़, कुछ स्टेट्स में जैसे कि बिहार में मेज़ इज़ ग्रोन इन राबी सीज़न, ठीक है। बिहार में जो है मेज़ जो होता है वो राबी सीजन में भी ग्रो कर लेते हैं वो, ठीक है। यूज़ ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरीगेशन, ये सब कंट्रीब्यूट किया है इंक्रीज़ करने के लिए प्रोडक्शन ऑफ मेज़। अच्छा, जो मेजर जो मेज़ प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड योर तेलंगाना, राइट। ओके, देखिए यहाँ पे वीट का भी दे रखा है मैप। कितना सोचता है आपके बारे में NCERT, है ना, कि चलो बच्चों को हेल्प करते हैं। हाँ, देखिए मेजर एरियाज क्या है वीट का, जैसे हमने डिस्कस किया था कि राबी क्रॉप है तो ये नर्थ साइड में ज़्यादा होती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए यहाँ पे कहीं से जाती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कि नहीं, वो बताइए कि 23.5 से जाती है। तो ये वाली एरिया है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, आपको दिखा रखा है यार, ठीक है, देख लीजिए आप। ये सब एरिया क्या हो जाएगा आपका? ये सब क्या होता है? फ्लक्चुएट होता रहता है ना आपका, जो एक्चुअल में ये गर्मी, मतलब जो हम नॉर्थ एरिया जो बोलते हैं वो सब इसके ऊपर ही चले जाता है सारा का सारा नॉर्थ। तो ये लास्ट बाउंड्री है, तो इसके ऊपर से पूरा का पूरा आपको क्या मिल जाएगा? जो वीट है वो सब मिलता है, क्योंकि इधर ठंड बढ़ते जाता है ऊपर, यहीं से ज़्यादा बढ़ने लगता है, ठीक है। आप इंटीरियर में आने लगते हो, कॉन्टिनेंटलिटी जो बोलते हैं वो यहीं से इफेक्ट होने लगता है, ठीक है। अच्छा, तो देख लीजिए यहाँ तक क्लियर है।
नाउ मूविंग फॉरवर्ड, पल्सेस को एक बार डिस्कस करते हैं। इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। दिस आर द मेजर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट। ये प्रोटीन का सबसे मेजर सोर्स होता है ये, ठीक है, वेजिटेरियन की डाइट में। मेजर जो पल्सेस जो हैं दैट आर ग्रोन इन इंडिया, मेजर पल्सेस आर ग्रोन इन इंडिया, वो कौन कौन से हैं? तुर, जिसको अरहर बोलते हैं, ठीक है, देन योर उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड योर ग्राम, राइट। अच्छा, कैन यू डिस्टिंग्विश विच ऑफ दिस पल्सेस आर ग्रोन इन द खरीफ सीजन एंड विच आर ग्रोन इन राबी सीजन? ठीक है, तो पल्सेस जो हैं आप कैसे डिस्टिंग्विश करोगे? तो देखो पल्सेस क्या हैं, उनको लेस मॉइस्चर चाहिए होता है एंड वो सर्वाइव कर सकते हैं ड्राई कंडीशंस भी, ठीक है। ये लेग्यूमिनस होते हैं, लेग्यूमिनस मतलब जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से क्या कर लेते हैं, फिक्स अगर करते हैं नाइट्रोजन को तो रिस्टोर कर देते हैं सॉइल का फर्टिलिटी, ठीक है, एयर से नाइट्रोजन लेके, एंड देयरफॉर इसीलिए ये मोस्टली ग्रोन होते हैं कौन से? रोटेशन में विद अदर क्रॉप्स। जैसे एक बार आपने वीट लगा दिया, उसके बाद पल्स लगा दो, फिर से वीट लगाया, फिर से पल्स लगाओ, ऐसा रोटेशन होते रहते हैं। मेजर जो पल्स प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं कौन कौन से हैं? एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी एंड योर कर्नाटका, राइट। फिर आता है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। देखिए तो इसमें क्या आ गया, जो ग्रेन्स के अलावा वाले में आ जाएगा शुगर कैन। शुगर कैन क्या है? शुगर कैन एक ट्रॉपिकल है एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप है। ये ग्रो होती है वेल हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में, जिसमें टेम्परेचर जो है वो 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस तक होती है। ये से इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको याद रखना है, ठीक है। एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए यहाँ पे? 75 cm होना चाहिए, 75 से 100 cm, है ना। ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट में होती है अच्छी खासी, ठीक है। और इरीगेशन जो है रिक्वायर्ड है इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल। इरीगेशन यहाँ पे चाहिए होता है इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, है ना। इरीगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, नहीं तो कैसे होएगा? इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर, ठीक है। उसको सो करने के लिए, लगाने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए उसको मैनुअल लेबर चाहिए होता है, लगाने से लेके हार्वेस्ट तक पूरा। अच्छा, इंडिया इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर कैन ओनली आफ्टर ब्राज़ील। ब्राज़ील जो है सबसे ज़्यादा शुगर कैन प्रोड्यूस करता है पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग है, ठीक है, आफ्टर ब्राज़ील, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाता है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर, मेन सोर्स ऑफ शुगर यही है, गुड़, ठीक है, जैगरी जिसको बोलते हैं। फिर खंडसरी एंड मोलासेस। मोलासेस देखिए आपका वो जो है जो बायोफ्यूल्स जो हैं उसमें मोलासेस का भी यूज़ जिक्र किया गया है, ठीक है, तो आप मुझे याद रखिए। अच्छा, द मेजर जो शुगर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड योर हरियाणा। देन कम्स योर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो हैं तो 2000 ऐसा बोला जा रहा है कि 2017 में इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, ठीक है। और इन रैपसीड प्रोडक्शन, रैपसीड जो प्रोडक्शन है, इंडिया वॉज थर्ड लार्जेस्ट। रैपसीड में क्या था? इंडिया जो था थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। फिर डिफरेंट ऑयल आर ग्रोन, हाँ, अलग अलग ऑयल सीड्स जो हैं वो ग्रो होते हैं, और वो भी 12% ऑफ द टोटल एरिया को कवर करते हैं, ठीक है। जो मेन ऑयल सीड प्रोड्यूस जो होता है इंडिया में वो कौन कौन से हैं? वो आपका है ग्राउंड नट, मस्टर्ड, कोकोनट, सिजमम, ठीक है। और फिर सिजमम किसको बोलते हैं? तिल को बोलते हैं, जो तिल होता है ना, वो तिल का तेल। अच्छा, फिर सोयाबीन, कैस्टर सीड, कॉटन सीड, लिंसीड एंड योर सनफ्लावर, ठीक है। देन मोस्ट ऑफ दिस आर एडिबल एंड यूज एज कुकिंग मीडियम, है कि नहीं? बहुत सारे इसमें से एडिबल हैं, खाने लायक हैं, और कुकिंग मीडियम के लिए यूज़ होते हैं। फिर देखिए क्या बोल रहा है कि और कुछ जो हैं वो यूज़ होते हैं रॉ मटेरियल्स के जैसा फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोप वगैरह, साबुन, कॉस्मेटिक्स, ऑइंटमेंट्स वगैरह के लिए भी यूज़ होते हैं, ठीक है। अच्छा, जो ग्राउंड नट जो है ये खारिफ क्रॉप है और अकाउंट करता है हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन कंट्री, ठीक है। ये खारिफ क्रॉप है ग्राउंड नट, और ये क्या है? अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। गुजरात जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ग्राउंड नट का, फॉलोड बाय राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश, है ना। अच्छा, लिनसीड एंड मस्टर्ड जो है आर राबी क्रॉप्स। लिनसीड और मस्टर्ड क्या है? राबी क्रॉप्स हैं। अच्छा, फिर सीजमम जो है ये खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में, और राबी क्रॉप है साउथ में, देख लीजिए, ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है तिल का, ठीक है। कैस्टर सीड जो है ये बोथ राबी और खरीफ है, कास्टर सीड, ठीक है। अच्छा, टी क्या है? देख लीजिए, टी के बारे में बता रहे हैं कि टी का कल्टिवेशन जो है एक एग्जांपल है ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। बिल्कुल हमने देखा था पहले, स्टार्टिंग में हमने देखा था, ये एक इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है। इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है। आज की डेट पे मोस्ट ऑफ जो बहुत सारे जो टी प्लांटेशन जो हैं वो ओन्ड हैं बाय इंडियंस। जो टी का जो प्लांट है ग्रो होता है वेल इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स में अच्छा खासा ग्रो हो पाता है ये, और जहाँ पे डीप और फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल हो,
डीप हो और फर्टाइल हो। देखिए जो फर्टिलिटी है ना सॉइल का, जो अच्छा खासा सॉइल है वो कुछ ही सीएम तक होता है, पर टी के लिए थोड़ा सा डीप चाहिए फर्टिलिटी, और वेल ड्रेन्ड हो, अच्छा खासा पानी उसको मिलता रहे, रिच हो वो ह्यूमस में। देखिए वेल ड्रेन्ड का मतलब ये है कि पानी वहाँ पे जो है लॉग नहीं होना चाहिए, जमा नहीं हो जाना चाहिए पानी, ठीक है, लंबे समय के लिए। अगर पानी आया तो वो ड्रेन हो जाना चाहिए वहाँ से, ठीक है, जितना पानी चाहिए पेड़ को उतना मिल गया और फिर ड्रेन हो जाना चाहिए, ये नहीं कि वहाँ पे लॉग होके रह गया। इसलिए आप देखेंगे ट्री जो है वो टेरेस फार्मिंग में होता है। टेरेस, हाँ, मैंने आपको बताया था टेरेस फार्मिंग क्या होता है। ये अगर ऐसा पहाड़ है तो इसके ऊपर ऐसा टेरेस सा वो बना देते हैं, ठीक है, टेरेस सा ऐसा बना देते हैं पहाड़ को काट के, तो उससे क्या होगा, इसी के ऊपर टी का कल्टीवेशन होता है। देखिए ड्रेनेज अच्छा सा हो सकता है कि नहीं इस पर। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि डीप फर्टाइल और वेल ड्रेन सॉइल चाहिए, रिच होना चाहिए ह्यूमस में और ऑर्गेनिक मैटर में। अच्छा, टी का जो टी बूसेस जो हैं, मतलब टी के जो छोटे छोटे जो प्लांट्स हैं, उनको चाहिए वार्म एंड मॉइस्ट फ्री, मतलब वार्म एंड मॉइस्ट चाहिए, वो भी फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए। वार्म एंड मॉइस्ट होगा तो फ्रॉस्ट फ्री होगा, ठीक है नहीं। अच्छा, वार्म में कहाँ से फ्रॉस्ट हो सकता है, ऑल थ्रू द ईयर, वो भी पूरे साल। फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए उनको, बार बार उनको पानी चाहिए हो, ठीक है, इवनली वो भी डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए ओवर द ईयर। तो इससे क्या होगा, इससे अच्छा खासा ग्रोथ हो सकता है उनके लीव्स का। टी जो है लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, टी इज़ अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। क्या लिखा हुआ है, सॉरी, अच्छा मॉइस्ट फ्री, सॉरी, तो टी क्या है, देखिए फ्रीक्वेंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए इसको इवनली डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। टी जो है लेबर इंटेंसिव है, ठीक है, और फ्रीक्वेंट शावर्स क्यों चाहिए, तभी उसका कंटिन्यूस ग्रोथ हो सकता है उसके लीव्स का, ठीक है। ये इट रिक्वायर्स एबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर, अच्छा खासा और चीप और स्किल्ड लेबर होना चाहिए, अच्छे खासे नंबर में होना चाहिए। टी जो है टी जो है प्रोसेस होता है विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस, वहीं पे प्रोसेसिंग हो जाती है उसकी। जो मेजर टी प्रोड्यूसिंग जो स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं, असम है, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग है, एंड जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट है वेस्ट बंगाल में, तमिलनाडु है, केरला है। अच्छा, इसको छोड़ के अगर आप दूसरी साइड जाते हो वेस्टर्न साइड में, तो आपको हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, फिर मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा, ये सब प्रोड्यूस करते हैं टी। फिर क्या बोल रहा है, 2017 में इंडिया जो था ये वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग था आफ्टर चाइना, मैंने शायद बताया था स्टार्टिंग में, ठीक है अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो ये सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था आफ्टर चाइना। कॉफ़ी, इंडियन कॉफ़ी जो है ये वर्ल्ड में गुड क्वालिटी की कॉफ़ी मानी जाती है। जो अरेबिका जो वैरायटी है ये स्टार्टिंग में लाया गया था फ्रॉम यमन, ठीक है, यमन देख लीजिए आप, अरेबियन पेनिनसुला के नीचे वाला देश है, ठीक है। अब हाउथी रेबल्स उसके बारे में आपने न्यूज़ पढ़ा ही होगा, ठीक है। अच्छा, तो यमन से लाया गया था और इसको प्रोड्यूस किया जाता है इन द कंट्री, ठीक है। देखिए ये जो वैरायटी है इज़ इन ग्रेट डिमांड, ये ग्रेट डिमांड में है ऑल ओवर द कंट्री। स्टार्टिंग में इसका कल्टीवेशन वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द बाबा बुडान हिल्स, बाबा बुडान हिल्स में इसको शुरू किया गया था। एंड इवन टुडे इट्स कल्टीवेशन इज़ कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, आज भी ये कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। फिर आती है आपकी, फिर देखिए फिर आपकी आती है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ठीक है। तो 2017 में क्या होता है, इंडिया वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर चाइना। इंडिया जो है प्रोड्यूसर है ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स, मैंगोज ऑफ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ऑरेंजेस ऑफ, देख लीजिए मैंगोस यहाँ का, फिर बस मैं फ्रूट्स बस कर रहा हूँ, फिर ऑरेंजेस कहाँ के, नागपुर के, चेरापूंजी के, और बनानास कहाँ के, केरला के, मिज़ोरम के, महाराष्ट्र के, तमिलनाडु के, लीची और गुआवा कहाँ के, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, पाइनएप्पल्स कहाँ के, मेघालय के, फिर ग्रेप्स कहाँ के, ग्रेप्स आपके आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, महाराष्ट्र के, फिर एप्पल और पियर्स और एप्रिकॉट और वॉलनट्स कहाँ के, ये सब जम्मू कश्मीर के, हिमाचल प्रदेश के, सब ग्रेट डिमांड में है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको मैं ये बताता हूँ कि लीची, शाही लीची है, वो बिहार में उसको जीआई टैग मिला है उस पर, ठीक है, तो आप याद रखिएगा। फिर अल्फोंसो मैंगो को भी मिल रखा है, ऐसे बहुत कुछ, आप जीआई टैग पढ़ेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो ऐसे ही जो फ्लो में आता है मैं उसको बता देता हूँ आपको, ठीक है, ताकि आपके पास में भी कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रहता है ना तो वो अच्छा ही होता है। और एक्स्ट्रा नहीं है ये, एक्चुअल में आपको पढ़ना ही है, पर यहाँ पे अगर मैं बता देता हूँ तो वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जैसे लगता है, पर एक्चुअल में आप उसको आगे जाके पढ़ोगे, वो ज़रूरी है आपको पढ़ना, ठीक है। अच्छा, इंडिया इज़ एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, इंडिया जो है वो एक इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर है किस चीज़ का, पी का, कॉलीफ्लावर का, देन योर अनियन का, कैबेज का, टोमेटो, देन ब्रिंजल एंड पोटैटो, है ना। अब देखते हैं हम नॉन फूड क्रॉप्स के ऊपर हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है, नॉन फूड क्रॉप्स। अच्छा, आप जानते हैं इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया जो है प्रोड्यूस करता है 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल। इंडिया जो है वो प्रोड्यूस करता है कितना,
13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल इंडिया प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अच्छा, देन कम्स योर नॉन फूड क्रॉप्स। अच्छा, और एक चीज़ है जो मैं भूल रहा था वो बताना, कि आज के डेट में अगर आप हॉर्टिकल्चर में देखो ना, आज के डेट में हॉर्टिकल्चर वाले एरिया में, इस वाले एरिया में, ठीक है, हॉर्टिकल्चर वाले एरिया में इंडिया टॉप कर रहा है, ठीक है। इंडिया इज़ व्हाट, इंडिया इज़ इन द टॉप, यू सी इट इज़ सो गुड ना, टॉप पे है इंडिया, ठीक है। चाइना वाइना कोई नहीं है। ऑल राइट, ओके। देन नॉन फूड क्रॉप्स का एक बार देख लेते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स क्या है? रबर खाते हैं क्या? नहीं खाते नहीं, इसलिए नॉन फूड क्रॉप्स है, ठीक है। खाते तो नहीं होंगे, है ना, तो इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन फूड क्रॉप्स हम इसको बोलते हैं। तो नॉन फूड क्रॉप्स में देखिए कि रबर आ गया। रबर क्या है? इक्वेटोरियल क्रॉप है ये, बट अंडर स्पेशल कंडीशंस के अंडर में इसको ग्रो करते हैं। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी इसको ग्रो किया जाता है। इसके लिए मॉइस्ट और ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, जिसमें रेनफॉल हो मोर देन 200 cm और टेम्परेचर हो अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मोर देन 200 cm 25 डिग्री सेल्सियस। और इसको ऑल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल। बोल देगी खाली इक्वेटोरियल तो गलत हो जाएगा, है कि नहीं। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? रबर जो है एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है। और इसको मेनली ग्रो किया जाता है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबर, ठीक है, आइलैंड्स में। देख लीजिए ये सब एरिया क्यों, केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान निकोबर, क्योंकि ये सब इक्वेटोरियल क्लाइमेट्स में, इक्वेटोरियल क्लाइमेट जैसा है इनका, ठीक है, इसीलिए। एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। इन 2012 इन द ईयर ऑफ 2012 एंड 13, ठीक है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहाँ पे कि 2012-13 में क्या था कि इंडिया जो था 4th था अमॉन्ग द वर्ल्ड्स नेचुरल रबर प्रोड्यूसर्स। अब आज के डेट पे कितना है ये आप एक बार सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि फाइबर क्रॉप्स के बारे में बता रहा है। फाइबर क्रॉप्स क्या है? जैसे कॉटन, जूट, हेम्प, नेचुरल सिल्क, ये जो चार हैं ये मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं, ठीक है, मेजर फाइबर क्रॉप्स हैं ये ग्रोन इन इंडिया। जो फर्स्ट 3 हैं आर डिराइव्ड फ्रॉम द क्रॉप्स ग्रोन इन द सॉइल एंड द लेटर इज, मतलब कॉटन, जूट और हेम्प जो है ये आपको सॉइल में मिल जाते हैं, सॉइल से ग्रो होते हैं। और जो सिल्क है वो कोकोन से आता है, ठीक है, आप सिल्क वॉर्म, जो कि ग्रीन लिव्स के ऊपर खा के जिंदा रहती है, स्पेशली मलबरी के ऊपर, ठीक है। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है? रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म को जो हम रियर करते हैं प्रोड्यूस करने के लिए सिल्क फाइबर, उसको हम क्या बोलते हैं? सेरीकल्चर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको, ठीक है, सेरीकल्चर। देन कॉटन का एक बार देखते हैं। कॉटन इज सच अ इम्पॉर्टेंट क्रॉप। कॉटन से क्वेश्चंस बहुत बार पूछता है, बहुत बार, ठीक है, बहुत बार पूछता है कॉटन से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में। अच्छा, तो फाइबर क्रॉप्स में अब आ गए हम कॉटन क्रॉप्स पे। देखिए कॉटन जो है ये इंडिया को ऐसे बिलीव किया जाता है टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, ठीक है। कॉटन इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, है ना, मेन प्लांट है ये कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। और 2017 में इंडिया जो था सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना, ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था कॉटन का आफ्टर चाइना। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि कॉटन ग्रोस वेल इन ड्रायर पार्ट्स ऑफ द ब्लैक कॉटन सॉइल इन द डेक्कन प्लेट्यू। हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था कि ब्लैक कॉटन सॉइल बोला जाता है उसको, ठीक है, ब्लैक सॉइल को, या फिर रेगर सॉइल बोला जाता है, वहाँ पे अच्छा खासा ये ग्रो होता है, ठीक है। ओके, देन क्या बोल रहा है? इसको चाहिए होता है हाई टेम्परेचर, इसको अच्छा खासा हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट चाहिए, रेनफॉल चाहिए, इरीगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज। मैंने तो इसी से क्वेश्चन सॉल्व किया, मेरे को बस ये एक ही लाइन याद था कि फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए इसको 210, बस। बाकी सब जनरल अवेयरनेस से, मतलब ऐसे ही नॉर्मल कॉमन सेंस से क्लियर हो गया वो वाला मतलब क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, फिर ब्राइट सनसाइन चाहिए इसकी ग्रोथ के लिए, ब्राइट सनसाइन, अच्छा खासा सनसाइन होना है, जब जाके इसका ग्रोथ जो है वो होगा। अच्छा, फिर ये खरीफ क्रॉप है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं मैच्योर होने के लिए। जो मेजर जो कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं आपके महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, मध्य प्रदेश, देन आफ्टर योर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा, एंड देन योर उत्तर प्रदेश, ठीक है। नाउ जूट देख लेते हैं। जूट क्या है? जूट को माने मतलब जूट को दूसरे नाम से बुलाया जाता है, इसको बोलते हैं गोल्डन फाइबर, ठीक है, गोल्डन फाइबर। तो फिर जूट जो है ये ग्रो होती है आपकी अच्छे खासे वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल पे, वो भी फ्लड प्लेन्स पे, जहाँ पे सॉइल जो है वो रिन्यू होती है हर साल, ठीक है। ऐसी जगहों पे जूट जो है ग्रो होती है अच्छी खासी। हाई टेम्परेचर चाहिए होता है इसको, ठीक है, एट द टाइम ऑफ ग्रोथ। फिर वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा, मेघालय, ये सब जो एरिया हैं यहाँ पे ये मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं, ठीक है। इसको यूज़ किया जाता है गनी बैग्स प्रोड्यूस करने के लिए, मैट्स, रोप्स, यान,
कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट की वजह से ये अपना मार्केट लूज़ कर रहा है, और इसको कौन रिप्लेस कर रहा है? इसको रिप्लेस कर रहा है सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली द नाइलॉन भी इसको रिप्लेस कर रहा है, इसलिए अपना मार्केट ये लूज़ कर रहा है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, टेक्नोलॉजिकल एंड योर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स क्या क्या हैं देख लीजिए। तो जैसे मेंशन किया गया प्रीवियस पेजेस में कि एग्रीकल्चर जो है इसको प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया में फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से प्रैक्टिस होते चल रहा है एग्रीकल्चर। तो जो सस्टेन्ड यूज़ है लैंड का विदाउट कंपैक्टेबल टेक्नो इंस्टीट्यूशनल चेंजेस, इसकी वजह से मतलब अच्छा खासा अगर टेक्नो इंस्टीट्यूशनल अगर चेंजेस ना लाया जाए और बार बार मतलब यूज़ किया ही जाए लैंड को, जैसे यूज़ होता आ रहा है, यूज़ चलता ही जाए, तो इससे क्या हो सकता है? इससे जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इसमें हिंड्रेंस आ सकती है, इतने अच्छे से एग्रीकल्चर डेवलप हो नहीं सकता, ठीक है। और वहीं पे अगर आप डेवलपमेंट इंस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट, अगर आप डेवलपमेंट ना करके इरिगेशन के सोर्सेज को, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सोर्सेज ऑफ इरिगेशन, ठीक है, मतलब इरिगेशन के सोर्सेज तो डेवलप हो गए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स जो हैं लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री में वो अभी भी डिपेंडेंट है मानसून पे और नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर वो डिपेंडेंट है, ठीक है, अपना एग्रीकल्चर कैरी आउट करने के लिए। देखिए इरिगेशन मतलब डेवलप हो रखा है ऐसा बोल रहे हैं, फिर भी उन लोग इसी के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर डिपेंडेंट है लोग, ठीक है, मानसून के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। अच्छा, ग्रोइंग इतना जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है हमारा, फॉर ग्रोइंग पॉपुलेशन, ये बहुत ही सीरियस चैलेंज बन जाता है। एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है लाइवलीहुड फॉर मोर दैन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन, ठीक है, 60% से ज़्यादा लोगों के लिए पॉपुलेशन के लिए ये है। पर अभी थोड़ा सा इसका रेशियो कम हो गया, आप एक बार देखिएगा, शायद 54 या 56 के पास है ये, ठीक है। अच्छा, देन कम्स योर व्हाट, सॉरी टिल्ट हो गया ये थोड़ा, हाँ, देन कम्स योर कि जो कलेक्टिवाइजेशन जो है, कंसोलिडेशन है ऑफ होल्डिंग एंड कॉपरेशन एंड एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी एक्सेट्रा, ये सब प्रायोरिटी दिया था ताकि इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म लाया जा सके कंट्री में इंडिपेंडेंस के बाद। जो लैंड रिफॉर्म जो हुआ था ये मेन फोकस रखा था, लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो आई थी उसमें मेन फोकस किस पे था? लैंड रिफॉर्म पे, 1951 से 1956 वाला, ठीक है। अच्छा, देन कम्स योर जो राइट ऑफ इनहेरिटेंस है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है इसको। इससे क्या होता है? इससे फ्रेगमेंटेशन हो जाता है लैंड होल्डिंग्स में, लैंड होल्डिंग्स जो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती हैं, तो फिर भैया फिर वो इकोनॉमिकल नहीं रहेगा ना, ठीक है। जो लॉज जो रिलेटेड हैं, लॉज ऑफ जो लैंड रिफॉर्म्स के जो लॉज हैं ये इनैक्ट हुए थे इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्या इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब इनैक्ट तो हुए थे लैंड रिफॉर्म्स, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इसका अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन इसका क्या नहीं हो पाया? अच्छे से इसका इम्प्लीमेंटेशन इसका हो नहीं पाया जितना सोचा गया था, क्योंकि कुछ जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैं, मतलब जैसे कुछ स्टेट्स हैं वेस्ट बंगाल में तो अच्छा हो गया, पर कुछ स्टेट्स में नहीं हो पाया। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एम्बार्क करती है, मतलब वो बोलती है कि इंट्रोड्यूस करने के लिए एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, ताकि वो इंप्रूव कर सके इंडियन एग्रीकल्चर 1960-1970s में। तो यहीं पे ग्रीन रिवॉल्यूशन का फंडा आता है। मैंने बोला था 1960-1970s में ग्रीन रिवॉल्यूशन का फंडा आया, ठीक है, जहाँ पे वो यूज़ करते हैं पैकेज टेक्नोलॉजी। एंड फिर वाइट रिवॉल्यूशन आता है जिसको ऑपरेशन फ्लड भी बोलते हैं। तो ये सब इनिशिएट हुआ था ताकि इम्प्रूव हो सके लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। लेकिन इससे भी कॉन्सेंट्रेशन हो गया डेवलपमेंट इन फ्यू सिलेक्टेड एरियाज़, कुछ ही सिलेक्टेड एरियाज़ में डेवलपमेंट हो पाया, पूरा का पूरा नहीं हो पाया, पूरा इंडिया डेवलपमेंट नहीं हो पाया इससे एग्रीकल्चर। देयरफॉर 1980s में 1990s में क्या हुआ था, 1980s और 1990s में, कि एक कम्प्रहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, इनिशिएट किया गया, विच इंक्लूडेड, जो कि क्या इंक्लूड किया, विच इंक्लूडेड बोथ इंस्टीट्यूशनल एंड योर टेक्निकल रिफॉर्म्स, ठीक है। तो प्रोविज़न्स जो हैं इस पर जो प्रोविज़न्स हैं फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट, मतलब जो प्रोविज़न्स जो हैं रिलेटेड टू योर क्रॉप इंश्योरेंस के लिए, तो वो किससे आपको हेल्प करते हैं वो प्रोविज़न्स क्रॉप इंश्योरेंस वाले? ड्रॉट से, फ्लड से, साइक्लोन, फायर, डिजीज़, एस्टेब्लिशमेंट्स ऑफ फिर एस्टेब्लिश किया गया ग्रामीण बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, बैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग लोन फैसिलिटीज़ टू द फार्मर्स एट लो रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, है कि नहीं। ये सब ऐसा किया गया है ताकि ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे इसी डायरेक्शन में, ताकि एग्रीकल्चर अच्छे से हो सके। फिर किसान क्रेडिट कार्ड आया, ठीक है। फिर पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम आया, ये भी कुछ स्कीम से इंट्रोड्यूस किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बेनिफिट ऑफ फार्मर्स के लिए। और जो स्पेशल वर्ल्डियर जो बुलेटिन्स हैं और एग्रीकल्चरल जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, अच्छे खासे जो न्यूज़ हैं वो इंट्रोड्यूस किए गए, ये न्यूज़ चलाए गए रेडियो पे और टेलीविज़न पे, ताकि फार्मर्स का अवेयरनेस आ सके, ठीक है। गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मैंने बोला कि आप अच्छा खासा लेक्चर बना दूंगा इस पर छोटा सा। फिर जो कि फिर रेम्यूनरेटिव एंड प्रोक्योरमेंट प्राइसेस भी गवर्नमेंट अनाउंस करती है इंपॉर्टेंट क्रॉप्स के ऊपर में, ताकि एक्सप्लॉयटेशन ना हो सके फार्मर्स का, ठीक है।
और मिडिलमैन के द्वारा। देखिए यहाँ पे बोला है भूदान या ग्रामदान, ठीक है। तो ये एक अच्छा खासा एक कॉन्सेप्ट है कि महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया था, डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ही स्पिरिचुअल हेयर, है ना। अच्छा, वो पार्टिसिपेट किए थे इन द सत्याग्रह एज वन ऑफ द फोरमोस्ट सत्याग्रही। विनोबा भावे जो हैं सबसे पहला सत्याग्रही हैं, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द वोटरीज ऑफ गांधीज कंसेप्ट ऑफ ग्राम स्वराज, ठीक है। तो ये गांधी का कंसेप्ट जो है ग्राम स्वराज वाला, इसको ये बहुत सपोर्ट करते थे, ठीक है। अच्छा, आफ्टर गांधी जी मार्टरडम, ठीक है, जब वो शहीद हो गए गांधी जी, तो विनोबा भावे वो पद यात्रा अंडरटुक की है, ठीक है, टू स्प्रेड गांधी जी मैसेज, ठीक है। और कवर करते हैं ऑलमोस्ट पूरे के पूरे कंट्री को कवर किया वैसे पद यात्रा से लगभग। हाँ, वंस ही वॉज डिलीवरिंग अ लेक्चर इन द पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश। जब वो लेक्चर डिलीवर कर रहे थे तो कुछ पुअर, जो गरीब, जो लैंडलेस जो विलेजर्स हैं, वो डिमांड करते हैं कि हमको कुछ लैंड चाहिए अपने इकोनॉमिक वेलबींग के लिए। तो विनोबा भावे उनको प्रॉमिस तो नहीं कर पाते हैं कि इमीडिएटली मैं आपको दिला दूंगा कि भाई अपना ज़मीन इनको दे दे, ऐसा नहीं हो सकता ना। बट एश्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बोलते हैं कि ठीक है मैं बात कर लेता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, ठीक है, इसी प्रोविज़न से रिलेटेड, ताकि आपको एटलीस्ट कोऑपरेटिव फार्मिंग के लिए भी कुछ ज़मीन मिल सके। सडनली उस चीज़ में क्या होता है कि श्री रामचंद्र रेड्डी वो खड़े होते हैं और एंड ऑफर्ड 80 एकर्स ऑफ लैंड, ठीक है, और बोलते हैं कि 80 एकर्स ऑफ लैंड में ऑफर करता हूँ ताकि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सको ये अमॉन्ग द 80 लैंडलेस विलेजर्स। और इसी को बोला गया कि देखिए श्री रामचंद्र रेड्डी का नाम याद रखिएगा, और इसी को बोला गया एक्ट ऑफ भूदान। भू मतलब ज़मीन, दान कर देना, ठीक है। लेटर फिर ये ट्रैवल करते हैं, लेटर ट्रैवल्ड एंड इंट्रोड्यूस हिज आइडियाज़ वाइडली ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। तो कुछ ज़मींदार्स, ओनर्स, बहुत सारे विलेजर्स के, ठीक है, वो ऑफ़र करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम विलेजेस को अमंग द लैंडलेस। तो विलेजेस अब वो लैंडलेस में बांटने लगते हैं। इसको क्या बोलेंगे? ग्रामदान। विलेजेस अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करने लगे तो उसमें क्या हो जाएगा? ग्रामदान। हाउएवर फिर भी बहुत सारे जो लैंड ओनर्स हैं वो चूज़ टू प्रोवाइड सम पार्ट ऑफ देयर लैंड टू द पुअर फार्मर्स ड्यू टू द फियर ऑफ लैंड सीलिंग एक्ट। एक लैंड सीलिंग एक्ट आती है कि आपके पास इतना ही ज़मीन होना चाहिए, इतना ही क्वांटिटी का ज़मीन होना चाहिए आपके पास, इतने एकड़ रहना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा रहा तो क्या होता था? गवर्नमेंट ज़मीन हड़प लेती थी, ले लेती थी, ठीक है, ताकि उसको फिर वो गरीबों में दे सके। तो इसी से डर के लोग जो है गरीबों में ज़मीन बांटने लगे थे उस समय, ठीक है। फिर दिस भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे इज़ ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रेवोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम क्या जानते हैं? इसको एक दूसरे नाम जानते हैं, इसको बोलते हैं, हो गया ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। क्लियर है? अच्छा, नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट। क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का? नेशनल, इसमें मार्क कर देते हैं कि ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी इसको जानते हैं। अच्छा, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी में, एम्प्लॉयमेंट में एंड आउटपुट में? तो अब देखिए एग्रीकल्चर जो है बैकबोन की तरह काम किया इंडियन इकॉनमी का, ठीक है। जितना उसने शेयर दिया है जीडीपी में, तो उसे उससे बैकबोन की तरह काम किया है। और 1951 ऑनवर्ड से ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चले जा रहा है, ठीक है। तो 2011 में ये 52% था ऑफ द टोटल वर्क, ठीक है, और फोर्स एम्प्लॉयड, ठीक है, वर्क फोर्स एम्प्लॉयड जो इसमें थे वो टोटल 52% थे 2010-11 में, ठीक है, और जो कि हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन बनाते थे, ठीक है। फिर जो डिक्लाइनिंग जो हुआ शेयर ऑफ एग्रीकल्चर का इन द जीडीपी इज़ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न, ठीक है। डिक्लाइनिंग जो हो रहा है एग्रीकल्चर का जीडीपी में, ये एक सीरियस कंसर्न है। क्यों? क्योंकि कोई भी डिक्लाइन या स्टैग्नेशन अगर होता है एग्रीकल्चर में तो ये डिक्लाइन लाएगा दूसरे स्पीयर्स में भी इकॉनमी के, ठीक है, और इसके बहुत अच्छे खासे इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं, ठीक है, दूसरे फॉर द सोसाइटी। अच्छा, कंसिडरिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर का अगर आप इंपॉर्टेंस अगर कंसिडर करते हो इंडिया में, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं मॉडर्नाइज़ करने के लिए एग्रीकल्चर को। उसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेटअप किया, ठीक है, एस्टेब्लिश किया। फिर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, वेटनरी सर्विसेज, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, ठीक है, ऐसा वेदर फोरकास्ट, ये सब इसने किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि प्रायोरिटी मिल सके इम्प्रूविंग एग्रीकल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। फिर अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल, कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम द टेबल 4.1 से अगर आप देखोगे तो ऐसा क्लियर है दैट दो द जीडीपी जो है दो द जीडीपी ग्रोथ रेट इज़ इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। जीडीपी ग्रोथ रेट तो इंक्रीज़ हो रहा है ओवर द ईयर्स, ठीक है। अगर आप ये टेबल नीचे वाला भी आपको बताता हूँ तब, लेकिन
ये जनरेट नहीं कर पाता है सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कंट्री में। जितना जीडीपी अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ होना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। अच्छा, द ग्रोथ रेट इन एग्रीकल्चर हैज़ बीन डिसलरेटिंग विच इज़ एन अलार्मिंग सिचुएशन। ग्रोथ रेट जो है एग्रीकल्चर का ये डिसलरेट हो रहा है, वो भी ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर आज के डेट पे देखा जाए तो इंडियन फार्मर्स जो है फेस कर रहे हैं बड़े बड़े चैलेंजेस फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन। इंटरनेशनल में मतलब बाहर देशों में अच्छा खासा एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा। फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट भी रिड्यूस हो रही है, ठीक है, इस सेक्टर में, एग्रीकल्चरल सेक्टर में, ठीक है। फिर सब्सिडी जो है ऑन फर्टिलाइजर्स इज़ डिक्रीज्ड, जिससे ज़्यादा बढ़ रहा है क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जा रहा है। सब्सिडी नहीं मिलेगा तो फार्मर्स के ऊपर ही तो सारा फिर बर्डन आ जाएगा। अच्छा, मोर ओवर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज़, ठीक है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ में रिड्यूस का हो जाना, ठीक है। तो फिर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स क्या हैं वो आ जाएंगे इंडिया में बाहर कंट्रीज़ के। फिर फार्मर्स आर विड्रॉइंग देयर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम एग्रीकल्चर कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, वो अपना विड्रॉ कर ले रहे हैं इन्वेस्टमेंट, तो फिर डाउनफॉल हो जाएगा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर में, है कि नहीं। अच्छा, वाई आर फार्मर्स कमिटिंग सुसाइड्स इन सेवरल स्टेट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्यों सुसाइड, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं, अगर मैं बोलूँ तो बहुत सारे रीजंस हैं। तो आप न्यूज़पेपर वगैरह अगर पढ़ते हो डेली तो आपको पता चलता होगा। ये आपको जो आप पढ़ रहे हो न्यूज़पेपर वैसा आपको मेंशन करना है, अगर इसमें कुछ है तो वो भी मेंशन करिए। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन और एग्रीकल्चर एक बार देखते हैं, ये भी एक रीज़न है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, है ना। तो ग्लोबलाइजेशन जो है ये कोई नया फिनोमेनन नहीं है, ये कोलोनाइजेशन के टाइम से था। तो 19वीं सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स जो हैं वो जब इंडिया में थे, ठीक है, वो आए थे, तो उस समय भी इंडियन स्पाइसेस जो थे ये एक्सपोर्ट होते थे टू डिफरेंट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एनकरेज टू ग्रो दिस क्रॉप्स, ठीक है, स्पाइसेस वाले क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए फार्मर्स को इनक्रेज किया जाता था साउथ इंडिया के। आज भी ये वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आइटम्स है एक्सपोर्ट के लिए फ्रॉम इंडिया। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट जो थे इंडिया के वो अट्रैक्ट करते थे ब्रिटिशर्स को, एंड अल्टीमेटली कॉटन वॉज एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन, ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है ब्रिटेन को एज रॉ मटेरियल फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए ब्रिटेन में जो हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो आया था तो उसमें टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज लगे, ठीक है। तो वहाँ के टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए हम लोग कॉटन इंडियंस दे वहाँ पे एक रॉ मटेरियल के हिसाब से ये देखा जाता था। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है मैनचेस्टर में, लिवरपूल में, ये अच्छे खासे डेवलप हुए, ठीक है, क्योंकि उनको अवेलेबल था गुड्स, अच्छा खासा क्वालिटी कॉटन था फ्रॉम इंडिया उनको अवेलेबल था। तो आपने चंपारण मूवमेंट आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जो कि 1917 में जो हुआ था बिहार में, ठीक है। ये स्टार्ट हुआ था क्यों, क्योंकि फार्मर्स जो थे इस रीजन के वो फोर्स उनको किया जाता था ताकि वो ग्रो करें क्या, इंडिगो। तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा मालूम पड़ा, रिवीजन भी हो गया, ठीक है। 1917 में चंपारण मूवमेंट बिहार में, है ना। तो क्यों ये मूवमेंट शुरू हुआ था, क्योंकि इंडिगो के नाम पे शुरू हुआ था, ठीक है। और ऐसा था कि बिकॉज इट वॉज नेसेसरी फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, जो ब्रिटेन में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो लोकेटेड हैं उनके लिए नेसेसरी है, उनके लिए ज़रूरी है ये इंडिगो, तभी तो कलर कर पाएंगे वो, ठीक है। अच्छा, दे वर अनेबल टू ग्रो फूड ग्रेन्स टू सस्टेन देयर फैमिलीज़। अब अगर वो लगाते जाएंगे इंडिगो ही तो फूड ग्रेन्स कहाँ से वो फिर ग्रो करेंगे अपने फैमिलीज़ के लिए, खाने के लिए भी निकले, है कि नहीं। अच्छा, तो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, पार्टिकुलरली आफ्टर 1990 जो फार्मर्स जो हैं इंडिया में वो एक्सपोज हो गया नए चैलेंजेस से, रिलेटेड हो गया, उनका चक्कर पड़ गया नए चैलेंजेस से। देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको बोला था एक लेक्चर में ऑलरेडी कि जो ग्लोबलाइजेशन मतलब आपका एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ये 1991 में आया था, ठीक है, एलपीजी रिफॉर्म्स। तो उस समय क्या हुआ, हम लोग अच्छे खासे प्रोड्यूसर थे राइस के, कॉटन के, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट, स्पाइसेस, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में हम अच्छे खासे थे, बट वी आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलप्ड कंट्रीज़ बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़। वहाँ पे सब्सिडी जो है कुछ अच्छा खासा ही मिल रहा है, तो इसीलिए हम अच्छे खासे से नहीं कर पाते थे उनके साथ कम्पीट। देखिए तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि वही सब्सिडाइज़ करेंगे दूसरी कंट्रीज़, तो फिर समझ रहे हैं ना, हमारी कंट्रीज़ को प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो फार्मर जो प्रोड्यूस कर रहा है उसको तो उसकी गवर्नमेंट पैसे दे दी, तो उसको तो सस्ता पड़ गया, तो वो रेट भी कम करके बेचेगा। और हमारे यहाँ पे अगर सब्सिडी उतना नहीं मिल रही है, फार्मर्स को सस्ता अगर नहीं पड़ रहा है, तो वो तो अपना रेट तो बढ़ा के ही रखेगा ना, वरना वो तो डूब जाएगा, ठीक है। तो ये था प्रॉब्लम। तो आज की डेट पे इंडियन एग्रीकल्चर जो है फाइंड्स इटसेल्फ एट क्रॉस रोड्स, ठीक है। इंडियन एग्रीकल्चर अपने आप को क्रॉस रोड्स पे देख रही है। कैसे, सॉरी बार बार ऐसा हो रहा है, अब नहीं होगा, ठीक है। तो इंडियन एग्रीकल्चर अपने आप को क्रॉस रोड्स पे देखेगी कैसे,
टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल करने के लिए एग्रीकल्चर को प्रॉफिटेबल करने के लिए प्रॉपर थ्रस्ट की ज़रूरत है, ताकि इम्प्रूवमेंट हो सके उसकी कंडीशन में। ऑफ मतलब किसकी कंडीशन इम्प्रूव होने की बात करिए, जो मार्जिनल और स्मॉल फार्मर्स हैं उनकी। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है थी, उसने बहुत कुछ प्रॉमिस किया था, लेकिन आज के डेट पे ये कंट्रोवर्सीज में है ग्रीन रेवोल्यूशन। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा एलिज किया जा रहा है, ऐसा दोष ठहराया जा रहा है कि जो लैंड जो डिग्रेड जो हुआ है ड्यू टू ओवर यूज़ ऑफ केमिकल्स, जो एक्वीफर्स जो हैं पानी के, ये ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी वैनिश हो रही है, ठीक है, ये सबसे उसको दोषी ठहराया जा रहा है, ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ये सब हो रही है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। जो आज के डेट पे जो कीवर्ड जो है जीन रिवोल्यूशन विच इंक्लूड जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, तो ये भी है इसमें, ठीक है। द कीवर्ड टुडे इज़, आज के डेट पे कीवर्ड क्या है, जीन रिवोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग आता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, इसको कैसे जानते हो कि एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स, ठीक है, नया हाइब्रिड वेराइटी ऑफ सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग हम यूज़ करते हैं। नाउ कैन यू नेम एनी जीन मॉडिफाइड सीड यूज्ड वास्टली इन इंडिया? कोई भी जीन मॉडिफाइड सीड जिसको यूज़ किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो देखिए जो बीटी कॉटन वगैरह जो है, ठीक है, और अभी देखिए, अभी तो एक न्यूज़ आ रही थी कि वो फ्रांस में कुछ राइस का पाउडर वगैरह, ठीक है, वो उन्होंने बेचा फ्रांस से यूके के साइड हो गया, और वहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है, फ्रांस ने बोल दिया कि उसको इंडिया से लिया गया था उस राइस को, ठीक है, और ऐसा बोल रहे हैं कि वो हाइब्रिड मतलब वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है, ठीक है, जीएम क्रॉप है। तो ये उसी की बात कर रहा है कि जीन मॉडिफाइड मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम क्रॉप, ठीक है, तो उसी में बीटी कॉटन आता है, जो कि सिर्फ अकेला ऐसा है क्रॉप जो कि इंडिया में अलाउड है, बीटी कॉटन, जो कि बोल वोम से बचाता है, ठीक है। अच्छा नाउ इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन वोग मतलब ट्रेंड में है, ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है, ट्रेंड में, इन वोग मतलब ट्रेंड में है आज की डेट पे, क्योंकि उसको प्रैक्टिस किया जाता है बिना किसी फैक्ट्री मेड केमिकल्स के द्वारा। कोई भी फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड उसमें यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उसका कोई इफेक्ट भी नहीं होता है इन्वायरमेंट पे नेगेटिव मैनर में, है कि नहीं। तो कुछ फ्यू इकोनॉमिस्ट ऐसा सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स जो हैं उनका फ्यूचर जो है, अगर वो कंटिन्यू करें ऐसा ग्रो करना फूड ग्रेन्स वगैरह, और जो कि उन फार्म साइज़ पे जो कि स्मॉलर एंड स्मॉलर हो रहे हैं जैसा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, ठीक है, तो फिर इनका जो फ्यूचर है इतना ब्राइट नहीं है, ब्लीक, ठीक है, ब्राइट नहीं है। अच्छा, इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन इज़ अबाउट 833 मिलियन है इंडिया का रूरल पॉपुलेशन, जो कि डिपेंड करती है अपॉन 250 मिलियन हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। 833 मिलियन है इंडिया की पॉपुलेशन, जो कि किसके ऊपर डिपेंड करती है, 250 मिलियन ऑफ हेक्टर्स ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो कि देखा जाए तो वो हाफ अ हेक्टर पर पर्सन पड़ती है, ठीक है, हाफ हेक्टर पर पर्सन, ठीक है, नियरली उससे भी कम है, ठीक है, हाफ से भी कम है, क्योंकि हाफ चाहिए होता तो फिर आपको 415-16 चाहिए होता, ठीक है, तो यहाँ पे तो बहुत कम है। तो अब क्या बोल रहा है कि इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न। इंडियन फार्मर्स को क्या ज़रूरत है कि वो डाइवर्सिफाई करें। यहाँ पे एक जो है ये इन्फॉर्मेशन आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, आंसर राइटिंग बहुत हेल्प आएगी इससे आपको। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि इंडियन फार्मर्स को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है, सीरियल से हाई वैल्यू क्रॉप्स की तरफ। इससे इंक्रीज़ होगा इनकम भी और रिड्यूस होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो हो रहा है, क्योंकि फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, फिर बायोडीजल जो क्रॉप्स हैं जैसे जट्रोफा एंड जजोबा, ये सब के लिए बहुत कम इरिगेशन चाहिए होता है, ठीक है। राइस और शुगर केन में तो बहुत चाहिए होता है, पर इन लोगों में कम चाहिए होता है। तो इंडिया का जो डाइवर्स क्लाइमेट है कैन बी हार्नेस टू ग्रो अ वाइड रेंज ऑफ हाई वैल्यू क्रॉप्स। इंडिया का इतना अच्छा खासा डाइवर्स क्लाइमेट है, इसमें आप हाई वैल्यू क्रॉप्स भी आप कर सकते हो, ठीक है, क्रॉपिंग। अच्छा, फिर क्या बोल रहा है कि चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स विल मीन दैट इंडिया विल हैव टू इम्पोर्ट फूड। अगर हम सीरियल्स नहीं उगाएंगे तो हमको फूड मतलब वही सीरियल्स को हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे ही 1960s के समय क्या हुआ था कि ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज ए डिज़ास्टर, इसको डिज़ास्टर माना जाता था, है कि नहीं। बट अगर इंडिया इंपोर्ट करता है सीरियल्स को और एक्सपोर्ट करता है हाई वैल्यू कमोडिटीज़ को, तो उससे क्या होगा, इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकॉनमीज़। तो कुछ सक्सेसफुल इकॉनमीज़ हैं जैसे इटली, इज़राइल, चिले, ठीक है, इन लोगों ने ऐसे ही करते हैं। ये जो कंट्रीज़ हैं एक्सपोर्ट करते हैं फार्म प्रोडक्ट्स जैसे फ्रूट्स, ऑलिव्स, स्पेशलिटी सीड्स एंड वाइन, और इंपोर्ट करते हैं सीरियल, ठीक है।
आर वी रेडी टू टेक दिस रिस्क, क्या हम रेडी हैं? तो इस पर डिस्कस करिए, अपने दोस्तों के साथ में डिबेट रखिए, इस पर एक बहुत अच्छा खासा है। तो दिस वाज द चैप्टर, और ये काफ़ी लंबा चला क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन भी थी, और मैं नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो छूट जाए, तो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, ऐसा मैं पढ़ाना चाहता हूँ आपको, ठीक है। और अगर इसमें से एक भी क्वेश्चन आपका बनता है तो आई विल बी सो हैप्पी। सो लेट्स कंटिन्यू द सीरीज़, और हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है। तब तक के लिए टाटा, और ध्यान रखिए अपना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।